Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Atomic minerals. There is atomic minerals here. There is important. Atomic energy can be produced by fusion as a fusion. Fission and fusion of their atomics are rather the nuclear part of the radioactive mineral like uranium, thorium and radiums. India is a process there is a world as the largest is a reserve of monazites, the principal of source of thorium and some are reserve of the uranium. That is an important here is the atomic minerals here. And the first here, uranium. Uranium is the most important here. In India, uranium is embedded in their igneous and metamorphic rock in the Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh, and some part of Himalaya. You know that there is an important here. The uranium in India is uranium is embodied to igneous and a metamorphic rock. There is important igneous and metamorphic rock there is present, and mainly here Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh, and some part of Himalaya. A substantial source of the uranium deposit is also found in the monazite sand along the Kerala coastals. The production of the uranium at the present is confined to be a mine at the Jadgoda in the Rasigha, Bhomam district of Jharkhand. There is an important here present of uranium, and the total reserve of the uranium is a country are enough to support the 5,000 to 10,000 is a MW of the electricity generating capacity. You know that there is the most important 5,000 to the 10,000 megawatt of electricity generate of capacity of there is an important uranium. Uranium is important for the all of country. There is a use of the megawatt of air electricity in production. And thorium is here. Thorium is principally obtained from the monazite. The beach sand of the Kerala is a Palaghat and Kolan districts content to the world as richest monazite deposit here. It is also occurred on the sand of Visakhapatnam in Andhra Pradesh. You know that Visakhapatnam is Andhra Pradesh here. Here come to some important point, notable point. They're not in your notebooks. There is the most important in this box. The production of uranium is presently confined to be a mine of the Jadgoda and Singhbhum district of Jharkhand. India is supposed the world's largest monazite reserve as the principal source of thorium. And here the beach sand of Kerala and Palghat and the Gleniums district of contain of world's richest monazite deposit here. In India, uranium is found in the igneous and metamorphous rock. There is an important point. There is the uranium is found here, igneous and metamorphous rock in a Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh and some part of Himalaya. That is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ के बात करने हम जा रहे हैं आणविक खनिज। देखिए आणविक खनिज का क्या महत्व है, तो देखा जाए तो आणविक खनिज जो है एक परमाणु शक्ति का उत्सर्जन इन खनिजों के अंदर ही व्याप्त परमाणु विखंडन या विलीनीकरण से होता है। तो आपको पता है कि पूरे विश्व जो है आणविक खनिज के रिगार्डिंग ही उनका जो है विद्युत शक्ति चलती है, लेकिन भारत जो है इसमें अभी अग्रसर नहीं है। भारत में कुछ ही क्षेत्रों में जो है इसका जो है चल रहा है कार्य, लेकिन ये बहुत ही कहते हैं इम्पोर्टेंट है। यानी परमाणु का जो है उत्सर्जन इन खनिजों के अंदर ये व्याप्त परमाणुओं के विखंडन या विकलन के द्वारा होता है। और इन खनिजों के अंतर्गत जो है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम्स आते हैं। जो भारत में जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार जो है मेनाजाइटिस का है। यानी भारत में देखें तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार मेनाजाइटिस का है, जो थोरियम का ही स्रोत होता है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो है इस खनिज का जो है बहुत उज्जवल भविष्य है। और इसके अलावा यूरेनियम के भी भंडार हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार हमारे पास है मेनाजाइटिस का। यदि हम बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम के बात साफ यहाँ बताया गया है कि भारत में यूरेनियम जो है अग्नेय और रूपांतरित शैलों में मिलती है। यानी यूरेनियम जो है मुख्य तौर पर अग्नेय और रूपांतरित शैलों में स्थानांतरित जो है अंतर्स्थापित होकर पाए जाते हैं। ऐसे विशिष्ट जो है खनिज युक्त शैल झारखंड, राजस्थान,
आंध्र प्रदेश तथा हिमालय के कुछ भागों में अवश्य पाए जाते हैं। केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरेनियम मैग्नेटाइट्स जो है बलुआओं के ढेरों में उपलब्ध है। तो आप समझ सकते हो कि केरल का तट भी काफ़ी रिच है, क्योंकि यहाँ पर जो है यूरेनियम और मैग्नेटाइट्स के जो है बलुआओं के ढेरों में उपलब्ध है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। वर्तमान में यूरेनियम का उत्पादन जो है सिंहभूमि जिले झारखंड की जो है जादूगोड़ा खदानों से किया जा रहा है, और भारत में यूरेनियम के भंडार जो है 5,000 से 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला भविष्य जो है इन्हीं पे यूरेनियम पे ही टिका हुआ है, जहां पर 5,000 से 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है थोरियम। देखिए थोरियम क्या है, देखिए कहते हैं थोरियम मुख्य रूप से मैग्नेटाइट्स बालू में मिलते हैं, यानी थोरियम जो है मुख्य तौर पर जो है मैग्नेटाइट्स बालू में मिलते हैं। कहते हैं केरल के जो है पालघाट तथा कोलम्स यानी किलोविलोंस में जिले में पाए जाने वाले बलुआओं में विश्व का सर्वाधिक जो है मैग्नेटाइट खनिज मिलता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी बलुआओं में मैग्नेटाइट पाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और महत्वपूर्ण यहाँ पर बॉक्स है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बॉक्स में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को उजागर किया गया है, जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो एग्जाम में पेपर रहता है। तो पहली बात तो यही बात आता है कि वर्तमान में यूरेनियम का उत्पादन जो है जादूगोड़ा के खदानों से किया जा रहा है, यानी अभी के समय जो यूरेनियम का उत्पादन जो है मैक्सिमम जादूगोड़ा के खदानों में की जा रही है, जो कि बहुत बात ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या थोरियम का मुख्य स्रोत जो है मैग्नेटाइट्स है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका भंडार विश्व में सबसे अधिक भारत में ही पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कम से कम भारत जो है मैग्नेटाइट्स से काफ़ी परिपूर्ण है, यानी भारत में ही विश्व के सबसे अधिक बड़ा भंडार पाया गया है। समय तटीय बालू जिनमें जो है मैग्नेटाइट्स मिलता है का केरल के जो है पालघाट और कोलम जिले में विशाल भंडार है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। अब देखिए कोलम जिले में सबसे बड़ा भंडार है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में यूरेनियम झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल के कुछ भागों में अग्नेय और रूपांतरित शैलों में मिलते हैं, यानी इसका भंडार मुख्य तौर पर अग्नेय और रूपांतरित शैलों में मिलते हैं। और मुख्य तौर पर ये यूरेनियम जो है झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं के कारण जो है भारत का जो है उज्जवल भविष्य है, और भारत में बहुत सी संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। तो इस टॉपिक को अगर आपको समझ में आया है, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। कहते हैं दोस्तों, जब तक हेल्प नहीं की जाता तब कुछ भी जो है आगे विकास नहीं होगा। कहते हैं हर जगह विकास में एक अकेला बंदे का हाथ नहीं होता है, हर व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने में। तो अभी सोचना नहीं है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ठीक है, क्योंकि जितना प्रोत्साहित मुझे करोगे उतना आपके लिए जो है यहाँ पर वीडियो उपलब्ध होगा। और मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे जो हैं वीडियो देखते हैं, समझते हैं, उनको समझ में भी आता है और अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं। और कमेंट करना अच्छी बात होता है, इससे मुझे समझ में आता है कि आपको किस प्रकार जो है गलतियां हो रही है, किस बात को उसको सुधारा जा सके। ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर पसंद आता है, बाद में अगर कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नजर ना आए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने में ही फायदा है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा, जहां पर सारे वीडियो जो बखूबी उपलब्ध है। अगर आप किसी क्लास वाइज देखना चाहते हो, टॉपिक वाइज देखना चाहते हो या सिलेबस वाइज देखना चाहते हो, तो इसका भी प्रावधान है। इस पे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर हर एक वीडियो जो है आपके क्लास वाइज है, आपके टॉपिक वाइज है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और साथ में कमेंट करना मत भूलिए।